So today we will be discussing the Gate Ecology Evolution 2021 paper. So this is from the side of ASS Science Foundation. We are presenting you the solution, right? So let's start from question number one, starting from the aptitude, right? So we will be starting from the aptitude part. So first question, which is basically a very simple one, right? So they are simply asking you, I guess it will be well versed with everyone, like it's not that much of typical of question, so you can very easily do this question. It's not having anything. So they are simply asking you the question number one. They are asking you what the people dash where at the demonstration were from all the sections of society, right? So the correct answer here will be woo. So simply we use woo for living things. Generally we use it for living things. One point I guess has to be noticed here, right? And then the other thing is that if you go by this, then we can use that where other places we can have this. So it is basically refer the subject of a sentence, and it's basically pronoun. We are referring to the subject of sentence, so that can be done here. Plus other things you can use if sometime they ask you a question, who is an object pronoun like him, her, us, and then we use whom to ask which person receives an action, and whose is a passive noun like his, her, and ours, right? And we use which for the animals in general or things, right? So generally you have to be very conscious. So 1 mark would have been added very easily there. Then moving to the next question, it's also a very simple question. Just read the question very carefully. You will get full marks for this, right? You will get full marks for this. Yes, yes, they always have 65 question, 10 question for aptitude, and 55 from subject, right? This is common. Yeah, they will always give. Now coming to the second questions, what they say in the second question, this is the picture which have been given to you. This picture which is shown here, right? And they are saying what the question says: a transparent square sheet shown above is folded along the dotted line. Means they will be folding this along this dotted line. So they will be folding it like this. So they will be topple up this, right? So this section will be taken to left, right? So and it will be folded sheet look like. So it is very simple. When you will fold this, only this pattern will be followed. The third one, which is here, the third one, because once you will move this sheet right to the left, they will form structure like this. So C is the correct answer here. C is the correct answer. So you have to be careful in terms of imagination. Yeah, Priyanka Arora, we will do that. Let the paper come out. Na boss, paper abhi aaya nahi hai. Okay, right? Paper abhi aayega. So C is the correct answer here. Now let's move to the third question, which is very easy question. It have nothing like and Sumit sir have taught you this in aptitude part as I was there in the classes, so I can well sense. So it is very simple question. What they say, just a minute. Yeah, it's a very simple question. What they are saying here. Yeah, what they are saying here, they are saying that question number 3, right? So what they are saying here, for a regular polygon having 10 sides, the interior angle between the side of the polygon in degree is. It's a very simple question, guys, and there is a like a general formula for the same. When you have n number of sides of a polygon, so let us suppose the formula for the interior angle is simple. Let us suppose interior angle being theta and n is the side. It could be 5-side pentagon, hexagon, heptagon, and Sumit sir have very well taught this concept. So the angle is equal to n minus 2 divided by n into 180. So it will be n minus 2 divided by 1 into 180, where n is what? N is the side. N is the side of the polygon, right? Here, n is the side of the regular polygon, and here we have been
So it's like this only. Difficulty level we will come. We will share that. You will see. Just have a look. 10 question is there for aptitude in section A, Priyanka. I guess you have not seen the paper. Please see the paper first, right? And you just preparing. If you are not targeting that, then it is a different story, right? So here you will put 10 and it will be 10 minus 2 divided by 10 into 180. So guys, it will be 8 into 18. So automatically it will come out to be 144 degree. So the correct answer is 144 degree. Anyone having any doubt till here, till third question? Jaldi se bataiye. Anyone having any doubt till question number 3? Quick and fast, guys. We have to cover up this in upcoming 2 to 3 classes. Anyone, all the people who are targeting this exam, Deepak Soni, Nidhi Chilla, Ritambara Singh, right? Chalo. Now let's move to the next question. It is also a very simple question, right? And we have multiple ways of doing this question, but I will go with the simple way, right? I will go with the simple way. And we have multiple ways of doing this question. It's a very simple question, belongs into like some 10th, 12th class mathematics, if I am not wrong, right? See how simply it can be done. I will tell you 2 to 3 methods for doing this question, but first you see question number 4, right? How it can be done. So it says that which of the following number is exactly divisible by 11 raised to the power 13 plus 1, right? Right. So which of the following number is exactly divisible by 11 raised to the power 13 plus 1? So these are the options 1, 2, 3, 4. So what you will do if you know that, that a square minus b square is equal to a minus b into a plus b, right? So you know that very well. And if we have a power 4 minus b power 4, what it will be, guys? It will be a square plus b square multiply with a square minus b square, and a square minus b square have been expanded above a plus b and a minus b. So if you take these options, let me start from the option number D, right? So if we expand these options in the form of something like this, then if somewhere come 11 raised to the power 13 plus 1, then that should be divisible by 11 raised to the power 13 plus 1, because if it is coming, right? So how we will do, let us suppose we take this option, we start from D, because we are seeing here it is something raised to the power 52, right? So we write it as 11 raised to the power 52 minus 1 raised to the power 52. So how it could be expanded? It could be expanded 11 raised to the power 26 by the formula like a square minus b square, right? Or a power 4 minus b power 4. So a square minus b square, 11 plus 11 raised to the power 26, right? And then we have 11 raised to the power 26 minus 11 raised to the power 26. Sorry, 1, not 11. It should be 1. Second term should be 1. Yeah, it should be 1. And here also 1126 minus 1 raised to the power 26. And this can further be reduced. This can further be reduced to 11 raised to the power 13 plus 1. A square minus b square is a plus b, and 11 raised to the power 13 minus 1, a minus b. So you can see here coming the term 11 raised to the power 13 plus 1. So this is the term, right? It will be exactly divisible by 11 raised to the power 13 plus 1. So this is one way. So the correct option would be D, right? And the other way could be, there is an other way also. We will see that how it can be done, right? So you have these identities which you might have done, and Sumit sir might have taught you this very well. Like if you have x raised to the power n minus y raised to the power n is divisible by x plus y if n is even. Like it could be any even number, 1, it could be any even number, 2, 4, 6, 8, 10.
Then similarly, x raised to the power n minus y raised to the power n is divisible by x minus y if n is odd, right? And then similarly, x raised to the power n plus y raised to the power n is divisible by x plus y if n is odd. So these are the identity to remember. And then you have to check. If you go for option A, it will be a square plus b square. So this will be the fourth one, and divisible by if n is odd. But here n is 2, but 2 is not odd. So this cannot be correct. This will be wrong. Then second, you have 11 raised to the power 33 plus 1. So you will write 11 raised to the power 3, 1 raised to the power 3, right? Right. So if n is odd, so not divisible, here 11 raised to the power plus 1, not divisible by 11 raised to the power 13 plus 1. This is also wrong. Similarly, you check third one, and when you check fourth one, it is divisible and 4 is even. So this can be done by this way also, but it's bit like a remembering thing, but the other way around is easy. Like you have to see the formula. Now, I hope it is clear to everyone. This question clear to everyone? जल्दी से बताइए भाई फटाफट, जल्दी से बताइए फटाफट, अगर किसी को कोई डाउट है जल्दी से, बिकॉज वी वांट कि आप बेनिफिट पूरा उसका ले सकें सेशन का, ऐसे नहीं कि बस खाली जी सब्जेक्ट आ रहा है या सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, बिकॉज यू हैव टू स्कोर एनीवेज 50 plus marks, easily you will enter into a good rank regime. क्लियर है सबको? यस यस, उससे भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, उससे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ. Now let's moving to the next question, question number 5. So this question is also very easy. This question is also very easy. Right, this question is also very easy. What it says that oasis is to sand. So Iceland is to what? So which of the following option maintain a similar logical relationship in the above sentence? Means आपको similar logical relationship ढूंढनी है, तो पहले आपको इनके meanings पता होने चाहिए. Meanings पता होने का mean क्या है कि you have to know the meaning of oasis. Sand तो आपको पता है sand होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले, right? So oasis is basically what? Is a small fertile green wet area that springs up out of the desert, right? जैसे कोई green color का patch आ जाता है ना desert के अंदर, that is called oasis. So desert is generally covered with sand, right? Similarly, जो Iceland है आपका is a small land dry area that springs up to the ocean. So ocean is filled with water. So Iceland को कौन cover करेगा? Water. जैसे oasis को कौन cover करता है? Sand. So oasis is to sand is similar to like Iceland is to water. So the same place oasis hold in between the sand in desert, the same place Iceland is locked by water. So they are having the similar kind of logical relationship. So same way, if you go to this question, so you have to have the correct answer as water. So water is the correct answer here. Is it clear? Water is the correct answer here. Clear है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलिए. Water is the correct answer. Here water. Right, so this question is also done, question number 5th. Now moving to the question number 6th. This is a good question, but not like something very indifferent which you cannot do, and 2-mark question it is. Imagine, it's a very simple question. So simply you have to read a passage and answer the question. So question number 6 says what? The importance of sleep is often overlooked by students when they are preparing for exams, right? Absolutely true. They don't sleep properly and they keep studying continuously, right? Then research has consistently shown that the sleep deprivation greatly reduces the ability to recall the material learned. So it have been shown that whatever, if you learn something and if you don't sleep well, then you might not recall what you have learned. So there is a great possibility. Hence, cutting down on the sleep study, longer hours can be counter-reproductive. So it can negatively impact your performance, right? So which one of the following statement is correct, inferred from the above passage? तो आपको ये बताना है कौन सी statement correct है
right? So if we go to first statement, sleeping well alone is enough to prepare for an exam. Studying has lesser benefit. नहीं, ये तो गलत है भाई, पढ़ना भी पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा. Students are efficient and are not working in thinking that sleep is a waste of time. ये भी गलत है. If a student is extremely well prepared for an exam, he needs little or no sleep. ये तो बिल्कुल ही गलत है. आपको सोना तो पड़ेगा ही. And if you come to the fourth, right? Come to the fourth option, that like the to do well in exam, adequate sleep must be part of the preparation. Yes, you have to study and you have to sleep as well. So D is the correct answer here. To do well in the exam, adequate sleep must be the part of preparation. If you go to the explanation of this question, I have written some of the key points regarding this. So look at lines like researchers has consistently shown the sleep deprived greatly reduce the ability. So means you have to perform very well, right? Overlook means you don't pay attention to, right? And deprivation means less, a situation in which you do not have things or contain that are usually considered necessary for the pleasant life. And counterproductive means negative effect, right? Having an effect that is opposite to what you intend to desire. मतलब आप अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन अच्छा हो नहीं पा रहा तो counter productive हो गया, right? So this was there, and so this was an easy question, question number 6. Now moving to the next question. I hope nobody is having any doubt till question number 6. If anyone having any doubt, then please let me know, right? Because we have to discuss each and every question with proper concepts and proper logic. It's not like any ratta types. This question, guys, can be done in this question can be done in multiple multiple way around, but I will go with the simplest one, right? So आपको एक square दिया है यहाँ पे, right? What question says? Let's first see that. So question number 7 we are talking about, right? यहाँ पे आपको एक square दिया है, ये square जो बाहर वाला square है जिसको मैं overlap कर रहा हूँ. And each side is a 10. और आपको ये पता है square की जो सारी sides होती है equal होती है. ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 है, ठीक है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, right? All are like 10. And the thing is that if you each square is formed by joining the midpoint. Like if you see in this figure shown above, each inside square is formed by joining the midpoints of the side of the next large square. Means if you join the midpoint of this, like here, right here, 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 everyone form a new square. Then again, if you will join the midpoint of this here, 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 here. So in total, if you see, there are 6 square, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, starting from outside, right? And everyone is joined by the midpoint, which I want to say. So if guys, you notice in square, you have this angle as 90 degree everywhere. This is 90, right? And if this is 90, the midway you are doing means this is 5 and this is 5. This is 5, 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 this is 5. And by Pythagoras theorem, if you see this triangle, let me take a different color. This triangle, if you take, then you can calculate this side, right? It will come out to be under root of 5 square plus 5 square, means under root of 50, right? So 5 root 2. So this side will come as 5 root 2, right? Again, you can calculate further. Half of 5 root 2 is 2.5 root 2. So this way you can calculate. But my agenda is like if these midpoint have been joined, right? If this midpoint have been joined, we have to do nothing. Means if you are joining the midpoint, then the next square formed is exactly the half of the dimension. So ये जो सबसे बड़ा square है, इसका एरिया कितना होगा? Square का एरिया कितना होता है भाई? A square. तो इसका एरिया कितना हो गया? 100 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट वाले का इसका हाफ हो जाएगा. अंदर वाले का कितना हो गया? 50. नेक्स्ट वाले का इसका हाफ हो जाएगा 25. उससे नेक्स्ट वाले का कितना हो गया? 12.5. उससे नेक्स्ट वाले का कितना हो गया? 6.25. और सबसे लास्ट में जो है इसका भी हाफ कर दो, कितना हो जाएगा? 3.125. तो एक तो टेक्निक ये थी बड़ी इजी कि अगर मिड पॉइंट्स हैं और स्क्वायर ही बन रहे हैं तो एरिया डायमेंशन जो भी हाफ हो जाएगी, ठीक है? तो इजीली आपका आंसर आ गया 3.125. ये तो था कॉमन सेंस का क्वेश्चन.
कॉमन सेंस मेथड से आप कर सकते थे कि अगर सबसे आउटर मोस्ट वाला 10 साइड है तो ए स्क्वायर होगा, 100 हो गया। नेक्स्ट जो बनेगा उसका हाफ होगा इसका, क्योंकि मिड पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं ना, ये बहुत तकड़ा हिंट है कि जो मिड पॉइंट है ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, तो मिड पॉइंट में फिर आपका एरिया भी हाफ रह जाएगा, बिकॉज एग्जैक्टली हाफ डायमेंशन में आप बना रहे हैं। या फिर दूसरा क्या है कि जो आपका ये अंदर वाला स्क्वायर है, इसकी आप साइड कैलकुलेट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, और उसको फिर हाफ करके नेक्स्ट की करेंगे, उसको हाफ करके नेक्स्ट की करेंगे। वो मेथड से भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट आई विल गो विद द इजी मेथड, सेम वी हैव शोन हियर, राइट। लाइक इफ यू गो दैट वे, तो गिवन स्क्वायर जो है बाहर उसका हो जाएगा 1/2, ठीक है। देन इसको कैलकुलेट करेंगे 5√2 आ जाएगा, राइट। देन अदर साइड को कैलकुलेट करेंगे, फर्दर ये आ जाएगा 10/√2, 5 सेंटीमीटर। देन फर्दर कैलकुलेट करेंगे, ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट में जो साइड आएगी स्मॉलेस्ट वन की, दैट विल बी 5/2√2। वो साइड जो आएगी 5/2√2, तो ये आ गया, तो ए स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। यहां से भी सेम ही रिजल्ट आएगा, यहां से भी सेम ही रिजल्ट आएगा, 4 × 2, राइट। तो इसको आप कर सकते हैं 25/8, सो 3.125। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और कुछ नहीं करना है उसमें, आप बस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और आप क्या है बार बार जो मिसिंग पार्ट है उसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को इसमें? जल्दी बताओ, यहां तक कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई डाउट है किसी को? तो आप दोनों मेथड में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा, जो आपका डॉक्यूमेंट है जिसमें सॉल्यूशंस हैं, ये आपको मिल जाएगा क्लासरूम में, वहां से भी आप दोबारा रेफर कर सकते हैं, और क्लास लेक्चर भी मिलेगा ही, तो यू कैन बी डन। और आराम आराम से करना है, समझ के, ऐसा नहीं बहुत रश आवर है, 3 दिन में खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा पेपर नहीं है, ठीक है। बट डू इट पीसफुली, लर्न आउट समथिंग आउट ऑफ इट। ऐसा नहीं है क्योंकि थ्योरी में आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया है लोगों ने ऑलरेडी, राइट। जो क्लास में बहुत पढ़ाया है, स्पेशली रिचा मैम ने और तान्या मैम ने बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ाया है। सुमित सर ने भी काफी कुछ एप्टीट्यूड का पार्ट बहुत अच्छे से कराया है सारा। तो मेरे को लगता है आप इजीली आराम से 60+ स्कोर ला सकते हो, अगर थोड़ा सा एक्यूरेट रहोगे। ये पेपर आप देखोगे मोस्ट ऑफ चीजें आपकी क्लास में से आई हुई है 2021 में, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये मैंने जो दूसरा मेथड बताया आपको, शॉर्टकट जो है, ठीक है, 10 हो गया तो इसका एरिया हो जाएगा, राइट। तो ये आपका हर बार हाफ होता रहेगा, ठीक है ना। 6 स्क्वायर है वहां पे। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये 11th-12th लेवल का क्वेश्चन है, ये आपने खूब करा होगा, इसमें मतलब कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। इसको बस क्वेश्चन को पहले आप पढ़ लीजिए ढंग से, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और मैं इसको 3-4 तरीके से करा सकता हूँ, और मैं इजी वन से कराऊंगा जो इजी लगेगा। कहता है लेट एक्स बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग द टेम्परेचर मेजर्ड, कि एक्स कोई कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और टेम्परेचर को आप मेजर कर रहे हैं, एंड द रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, एंड लेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स fx is this much for x ranging from 0 to 100। अब देखो, जो सबसे होशियार बच्चा था ना, जो सबसे होशियार कोई बच्चा था, उसको तो यहाँ पे ये हिंट मिल गया कि भाई रेंज है 0 to 100, ठीक है। तो एक फार्मूला ये भी होता है कि जो मिनिमा प्लस मैक्सिमा बाय 2, जो मीन आपको निकालना होता है, अगर आपको 2 पॉइंट की रेंज दी हुई है, अपर रेंज और लोअर रेंज, तो उसके लिए तो आप सीधा करेंगे अपर रेंज प्लस लोअर रेंज बाय 2, क्योंकि मीन निकालना है आपने, इसका मीन पूछा है ना, मीन कह रहा है एक्स का कितना होगा, तो एक्स की वैल्यू तो कहां से कहां लाई कर रहे हैं, 0 to 100, 0 प्लस 100/2, तो ये तो आ गया आपका 50। आंसर मेरा हो गया 50, करेक्ट आंसर हो गया डी। ये तो सबसे शॉर्टकट मेथड था, जो सीधा ही आप कर सकते थे, इसको कि आपको पता है भाई एक्स इतने से इतने तक वेरी कर रहा है और उसका मुझे मीन निकालना है, तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या हो सकता था इसको करने के लिए, क्वेश्चन को बहुत ही इजी जो तरीका हो सकता था वो क्या हो सकता था, इंटीग्रेशन से भी आप इसको कर सकते थे। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन से भी आप इसको कर सकते थे। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे, देखो मीन ऑफ एक्स जो होगा, क्योंकि उसकी दो लिमिट दी हुई है 0 से 100, ठीक है, उसकी दो लिमिट दी हुई है 0 से 100, तो हम क्या करेंगे, जो मीन ऑफ एक्स है उसको आप ऐसे भी कर सकते हो, मीन ऑफ एक्स
is equal to इंटीग्रेशन ऑफ x fx dx a to b, जो उसकी लिमिट है। a क्या है 0, b क्या है 100, ठीक है। और यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है fx 0.01, तो इसको सीधा इंटीग्रेट कर लेंगे। आप कैसे करेंगे? 0 to 100, जिनको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आ रहा है, 0 to 100, और जी आपका fx हो गया 0.01 और dx, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 0.01 तो कांस्टेंट है x, और लिमिट क्या है 100 to 0। बस आप पुट करिए इसको, तो क्या आ जाएगा 0.01 तो कॉमन है, ये आ जाएगा 100, ठीक है ना। ये आ जाएगा 100, और नीचे x का जो है आपका स्क्वायर आएगा, x dx आएगा ना, तो x स्क्वायर बाय 2 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको रख सकते हो बाहर, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे ये आएगा 0.01 x dx, तो सिंपल आ जाएगा 0.01 x स्क्वायर बाय 2 हो गया इसका इंटीग्रेशन, ऊपर क्या आ गया 100, 0, तो इसको कर लो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.01 तो कॉमन है, ऊपर डालेंगे पहले 100, तो 100 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया 2 3 4 बाय 2, ठीक है। तो ये आएगा 500, और माइनस नीचे वाला तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया। तो ये कर लेंगे 500 डिवाइड बाय 100, बाहर 0.01 है ना, सॉरी, हाँ 5000 बाय 100, तो ये आपका आ गया 50। इसको भी अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो भी आपका 50 आएगा। तो कोई भी मेथड आप इसमें ऑप्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जिसको इंटीग्रेशन आता है वेल एंड गुड है, वरना प्रोबेबिलिटी वाले मेथड से कर सकते हो आप, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी वाले मेथड से कर सकते हो कि अपर रेंज माइनस लोअर रेंज बाय 2, क्योंकि दो ही वैल्यूज दी हुई हैं आपको। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ फटाफट, ये क्लियर है कि नहीं है? ये मैंने इंटीग्रेशन वाले मेथड से भी करके दिखा रखा है, देखो यहाँ पे। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे ऐसे करके, a to b x fx dx, x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स पुट करेंगे, और फाइनल आंसर आपके हाथ में। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ फटाफट भाई। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोलो, किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। एनीवन हैविंग एनी डाउट? चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9th वाला भी एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, वेरी बेसिक इसे आप कहेंगे। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। जो 9th क्वेश्चन है आपका, बेसिकली ये डीआई का क्वेश्चन है, और इस तरह के डीआई आपने खूब करे होंगे, ठीक है। कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग और फेलिंग इन एन एग्जाम फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर प्रेजेंटेड इन बार चार्ट अबव। इसमें पास और फेल वाली दी हुई है परसेंटेज, और जो ये शेडेड वाले हैं ये पास वाले हैं, ये ध्यान रखना। ये कैसे हैं? ये पास वाले हैं, और जो डार्क ब्लैक है ये फेल वाले हैं, ठीक है। ये दोनों का इनका दिया हुआ है रेशो, पास है और फेल है। उसके बाद आपसे कहता है कि द स्टूडेंट वो पास द एग्जाम कैन नॉट अपीयर फॉर द एग्जाम अगेन। जो एक बार में पास हो गया उसको दूसरी बार एग्जाम नहीं दिए देने जाएगा, ठीक है। कैन नॉट अपीयर फॉर द एग्जाम अगेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है। स्टूडेंट वो फेल द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट मस्ट अपीयर फॉर द एग्जाम इन द फॉलोइंग ईयर, उसको देना ही पड़ेगा अगले साल। स्टूडेंट ऑलवेज पास द एग्जाम इन देयर सेकंड अटेम्प्ट, स्टूडेंट हमेशा अपने सेकंड अटेम्प्ट में एग्जाम को पास कर लेते हैं। लास्ट में कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक द एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2 एंड इन द ईयर 3। अब आप ये बताओ कि सेकंड और थर्ड ईयर में कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ से निकाल के रखनी है। कैसे? पहली बार आपके 50 लोग थे जो पास हुए, ठीक है, तो ये तो एग्जाम दोबारा दे नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ये सेकंड ईयर में तो होंगे ही। तो यहाँ पे और 10 लोग ऐसे थे जो फेल हुए, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे सेकंड ईयर में क्या दिखा रहा है कि सेकंड ईयर में मेरे 60 लोग हैं, ठीक है, 60 लोग हैं, ठीक है ना। तो कितने बढ़ गए पास? 10 बढ़ गए, लेकिन 5 फेल भी हैं। 5 मेरे कितने हैं? फेल भी हैं, ठीक है ना। 5 मेरे फेल भी हैं, और पहले भी 60 थे। तो मतलब कायदे से कितने लोग ऐसे होने चाहिए जो पहली बार दे रहे होंगे, क्योंकि ये सम मेंटेन रहना चाहिए ना। इन 10 को भी दोबारा देना है और ये भी नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं, तो ये 60 है, तो 5 ऑलरेडी है। तो मतलब ऐसे कितने हैं जो पहली बार आए हैं? 55 है ऐसे।
समझ में आ रही है बात? ऐसे कितने हैं जो यहाँ पहली बार आए हैं? वो 55 है। ऐसे कितने होंगे? वो 55 है जो यहाँ पहली बार दे रहे हैं एग्जाम। क्या समझ में आया ये पहला? क्या लॉजिक समझ में आया यहाँ पे? कि जो पहले पास हो चुके थे वो 50 थे ऑलरेडी, ठीक है, और फेल वाले 10 थे। फेल वालों को तो दोबारा देना ही है, तो उन 10 को तो आना ही है। तो 50 ये और 5 जो फेल हुए, तो टोटल 55 ने दिया होगा ना, टोटल 55 ने दिया होगा भाई। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ। सेकंड ईयर में पहली बार एग्जाम कितनों ने दिया होगा? 55 ने दिया होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यही पूछ रहा है आपसे कि सेकंड और थर्ड ईयर में कितने कितने दिया। अभी मैंने सेकंड ईयर वाली प्रॉब्लम सॉल्व करी है, तो इसको देखो दोबारा देख सकते हो आप, इसको आप दोबारा देख सकते हो। ये जो 50 है, ये जो 50 है पहले ईयर में, ये तो पास हो गए, तो ये तो यहाँ पे रहेंगे ही। ये जो 10 फेल है ये भी रहेंगे, तो मतलब टोटल 60 है, ठीक है। लेकिन 5 उसमें से फेल दिखा रहा है, तो इसका मतलब टोटल कितने हैं जिन्होंने पहली बार ये दिया होगा? 55 हुए ना टोटल। 5 घटाओ फेल वाले। समझ में आ रही है बात सबको? जल्दी बताओ, पहले जल्दी बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? अब देखो अगला पॉइंट ये पूछ रहा है कि थर्ड ईयर में फिर से बताओ ऐसा, थर्ड ईयर में बताओ। तो जब थर्ड ईयर के लिए आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 50 है, ठीक है, मतलब 50 ऐसे हैं जो पास हो रहे हैं, ठीक है ना, 50 ऐसे हैं जो पास हो रहे हैं, ठीक है, और 3 ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं, ठीक है जी, 3 ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं। लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पे कितने कम हुए? यहाँ पे 10 कम हुए, और यहाँ पे कितने कम हुए? 2 कम हुए, है ना, यहाँ पे 10 कम हुए और यहाँ पे 2 कम हुए। तो देखा जाए तो एग्जैक्टली कितने कम हुए मेरे? एग्जैक्टली मेरे कितने कम हुए? तो इसमें से 2 मेरे कम हुए, क्योंकि थर्ड ईयर में जो आएंगे वो तो पास करेंगे ही ना। तो 50 लोग यहाँ पे मैं पास दिखा रहा हूँ, 50 लोग पास दिखा रहा हूँ, 3 लोग फेल दिखा रहा हूँ। तो जो ये 50 आए होंगे, ठीक है, ये सेकंड ईयर से आए होंगे, 50 आ गए, ठीक है ना, और 3 फेल हुए, तो टोटल कितने हुए? 53। और टोटल फेल कितने हुए थे सेकंड ईयर में? -5। तो 48 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यहाँ पास होंगे या पहली बार एग्जाम देंगे। समझ में आ रही है बात? 50 यहाँ पे पास है, 3 यहाँ पे फेल है, टोटल कितने हुए? 53। और पहले कितने फेल हुए थे? 5। तो उसमें से माइनस कर देंगे, तो टोटल कौन से ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे? 48 स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम देंगे, 48 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम देंगे। क्या ये क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे 50 पास है, 3 फेल है, टोटल कैंडिडेट कितने अपीयर हुए होंगे? 53। लेकिन इनमें से इन फेलियर को भी घटाओ, 5 को, तो नेट चलो तो 48, क्योंकि इनकी काउंटिंग दोबारा हो जाएगी ना, वरना इनको रिकाउंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक बार ही देगा जो फेल हो गया है। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है? जल्दी बताओ फटाफट भाई, क्या क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है? जल्दी बताओ। ठीक है, उनकी काउंटिंग दोबारा नहीं कर सकते ना, आपको ये बताना है कि पहली बार कौन अपीयर हो रहा है। चलो जी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट जस्ट आपको थोड़ा सा लॉजिक इसमें इस्तेमाल करना था, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक इसमें इस्तेमाल करना था, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 को देख लो, ये भी इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क का है शायद, आई गेस, ठीक है, तो काफी है, मतलब इट्स लाइक अ वेटेज फुल थिंग। यहाँ पे कहता है 7 cars P Q R S T U V are parked in a row and not necessarily in that order। भाई 7 कार आपकी पार्क्ड है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी ऑर्डर में ही हो, ठीक है, अनऑर्डर भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी 7 कार है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब कहता है द कार T एंड U शुड बी पार्क नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब T और U एक दूसरे के नेक्स्ट पार्क होनी चाहिए, ठीक है, T और U एक दूसरे के नेक्स्ट पार्क होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम साथ साथ करते रहते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहता है टी और यू एक दूसरे के साथ साथ पार्क होने चाहिए, तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती थी। या तो हमारी ये हो सकती थी कि आपका जो है टी यहाँ हो, ठीक है, और यू इसके साथ में हो, या फिर क्या हो सकती थी, यू उधर हो और टी इधर हो। 2 पॉसिबिलिटी हो सकती थी, ठीक है, ये मान ली हमने। दूसरा क्या कहता है,
the car S and V also should be parked next to each other. ठीक है, तो कार S and V should be also parked next to each other. कार S है आपकी और V है, ये दोनों भी एक दूसरे के नेक्स्ट पास होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, एक दूसरे के नेक्स्ट पास होनी चाहिए। तो इसमें भी आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, कौन कौन से? या तो ऐसा हो सकता था एस वी के इस तरफ हो या फिर वी एस हो, ये दो पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या कहता है? आगे कहता है वेयर पी एंड क्यू कैन नॉट बी पार्क नेक्स्ट टू ईच अदर। पी क्यू एक दूसरे के आमने सामने नहीं हो सकते, साथ साथ नहीं हो सकते। तो कभी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पी यहाँ हो और क्यू यहाँ हो, ये तो ऑप्शन है ही नहीं, इसको तो काट दो। अगली लाइन पढ़ो, बस पढ़ते रहना आपको। क्यू एंड एस मस्ट बी पार्क नेक्स्ट टू ईच अदर। क्यू और एस एक दूसरे के नेक्स्ट होने चाहिए, तो दो ऑप्शन हमारे पास क्यू के आ गए, या तो ऐसे होगा क्यू और एस, या फिर क्या होगा एस एंड क्यू। ठीक है जी, अच्छी बात है, ये भी हमने एक ऑप्शन ले लिया। अब आगे क्या कहता है? आर इज पार्क्ड टू इमीडिएट राइट ऑफ वी। आर जो है वो वी के राइट में पार्क है, ठीक है ना? तो मान लो अगर मेरा वी यहां होगा, जस्ट अ मिनट, अगर मेरा वी यहां होगा तो आर इधर होगा उसके राइट पे। चलो जी, अच्छी बात है। फिर कहता है कि टी इज पार्क टू द लेफ्ट ऑफ यू। टी जो है यू के लेफ्ट में पार्क्ड है, अच्छी बात है, टी यू के लेफ्ट में होना चाहिए। तो टी आपका यू के लेफ्ट में है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, ये समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इतना क्लियर है सबको? यस, चलो आगे देखो। अब क्या है कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये ध्यान रखना कि गलत कौन सी है, गलत कौन सी है। अब देखो, जब ये आपने सारे ऑर्डर पढ़ लिए, तो अब क्योंकि हमारे को ये ऑर्डर मेंटेन रखना है, तो जब आपको ऑर्डर मेंटेन रखना है, ठीक है, जब आपको ऑर्डर मेंटेन रखना है, तो मैं सीक्वेंस में चलूं लाइन वाइज। जो स्टेटमेंट इसने बोली थी सबसे पहले क्या है? टी और यू, तो मैंने यहां लिख दिया टी और यू। ठीक है, ये वाला ऑप्शन कट गया। ठीक है, फिर कहता है एस या क्यू और क्यू या एस। ठीक है, तो क्यू को मैं कहा रखूंगा? मैं ये लूंगा क्यू एन एस। ठीक है, ठीक है जी। अब तीसरे में कहता है वी और आर। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया वी और आर। और लास्ट में आपका एक बचा पी, क्योंकि साथ ही है ना, पी क्यू आर एस टी यू वी। अब देखो, इसमें से स्टेटमेंट चुनो। हालांकि मैंने दूसरे तरीके से भी करके दिखा रखा है नीचे, बट इसमें से स्टेटमेंट चुनो। स्टेटमेंट चूज करोगे, क्या कह रहा है? कौन सी इनकरेक्ट है? कह रहा है देयर आर टू कार पार्क्ड इन बिटवीन क्यू एंड वी। ठीक है, ये तो गलत हो गई, एक ही कार है इसके बीच में, तो एस है, तो ये गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? क्यू एंड आर नॉट पार्क टुगेदर। क्यू और आर, हाँ सही है, ये बिल्कुल सही है। फिर कहता है वी इज द ओनली कार पार्क बिटवीन एस एंड आर। ठीक है, वी और एस और आर के बीच में। कार पी पार्क्ड एट द एक्सट्रीम एंड, बिल्कुल सही बात है। तो नीचे वाले तीन स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट जो गलत है, देयर आर टू कार पार्क्ड इन बिटवीन क्यू एंड वी, दिस इज रॉन्ग। एक ही कार है एस इनके बीच में। क्या है सही? क्लियर है सबको? जल्दी बताओ फटाफट। तो आंसर इसका हो जाएगा जी ए। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ फटाफट। अब देखो, इसको अगर आप वैसे भी देखते तो बना के भी दिखाया हुआ हमने कि कार एस एंड वी शुड बी पार्क नेक्स्ट टू ईच अदर। तो दो अरेंजमेंट हो सकते हैं यहाँ पे, एक इस तरह का, एक इस तरह का। वो सारी चीजें मैंने करके दिखाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका अरेंजमेंट पी एंड क्यू कैन नॉट पार्क ईच अदर, फिर उसके बाद क्यू एन आर एस एन, सब कुछ दिखाया हुआ है। तो उसमें आप टेंशन मत लीजिएगा कुछ भी। ठीक है, तो ये आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट खत्म हो गया। अभी मैं 2 मिनट के लिए दोबारा शीट पे जा रहा हूँ, उसके बाद हम, आप कॉल पे सेम ही रहिएगा, वी विल स्टार्ट विद द सब्जेक्ट पार्ट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम सब्जेक्ट के करेंगे जरूर आज, भले ही हमारी क्लास का टाइम थोड़ा खत्म हो गया हो, सो दैट कि आपको मैं फटाफट से क्वेश्चन सारे करवा सकूं। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, मतलब इट्स नॉट दैट मच टफ जो आपको लग रहा है। तो अब मैं जा रहा हूं अपने सब्जेक्ट वाले पार्ट पे। ठीक है, 1 मिनट दीजिए आप मुझे।